Hello everyone, welcome to Ashadip International Online Education. Dear students, today I am going to teach you Standard 4 subject EVS. Here in this subject, today I'll teach you chapter number 4, The Story of Amrita. This is a real story which happened somewhere in Rajasthan. Let's see what is in the story. The story of Amrita. Students, let's read out the story and understand. This is a true story from long ago. बहुत साल पहले की ये ट्रू स्टोरी है, मतलब ये घटना घटित हो चुकी है. Almost 300 years ago, in a village called Khejdi, lived Amrita. There was a village, its name is Khejdi. It is situated in the Rajasthan, state of Rajasthan, near Jodhpur city. So, almost 300 years ago, मतलब 300 साल पहले की ये बात है. एक खेजड़ी नाम का विलेज था, उसमें there was one girl named अमृता lived. वहाँ पे एक अमृता नाम की एक गर्ल रहती थी. खेजड़ी विलेज is near Jodhpur in Rajasthan. As I told you that खेजड़ी विलेज जोधपुर में, राजस्थान स्टेट के जोधपुर सिटी के नियर में है. The village got its name because of the many khejdi trees that grow there. Students, you can see this is the picture of khejdi tree. Here in this village, why this village got the name खेजड़ी? ये विलेज का नाम खेजड़ी कैसे पड़ा? तो ये विलेज में बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज ग्रो होते थे, इसलिए ये विलेज का नाम खेजड़ी रखा गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर द पीपल ऑफ दिस विलेज took great care of the plant, trees and animals. Dear students, here you can see in this picture, observe the picture. Here two lady feeding the milk to the baby deer. One man is also fed deer here. And here in this picture you can see one lady is playing with the deer, like she is playing with her baby. Means here in this village, in Khejdi village, people took a great care of plant, trees and animals. यहाँ पे ये village में people जो है वो plant, trees and animals की बहुत अच्छे से, जैसे एक ह्यूमन बींग्स की केयर करते हैं वैसे ही सेम केयर करते थे. Goats, deers, hares and peacocks roamed freely there. Roamed मतलब भटकना, इधर उधर घूमना. तो ये जो goat, deer and hare मतलब खरगोश और peacocks, ये एनिमल्स जो है वो फ्रीली, फियरलेसली मतलब बिना डरे इधर उधर रोमिंग कर सकते थे. द पीपल ऑफ द विलेज remembered with their elders used to tell them. ये people, ये विलेज के लोग उसके एल्डर्स जो भी कहते थे, उसके बड़े जो उसको कहते थे वो लोग याद रखते थे और उसको फॉलो करते थे. They used to say, अगर पैर है तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. See, this is the answer of our one question which I already sent you in worksheet. What was the question?
what the people of Khejdi village used to say. This was the question. ये क्वेश्चन है कि खेजड़ी के पीपल क्या कहते थे. द आंसर शुड बी अगर पैर है तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. सर्वाइव दैट मीन्स सेवा करना. प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हमारे बिना, हमारी हेल्प के बिना काम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. बट हम उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते. Amrita's friend. Amrita would get up every morning and greet her friends, the trees. What Amrita do and who are Amrita's friends? Let's discuss here. Amrita would get up every morning and greet her friends. Amrita क्या करती थी? Every morning उठ के अपने फ्रेंड्स, कौन उसके फ्रेंड्स थे? तो द ट्रीज. ट्रीज जो है वो उसके फ्रेंड्स थे, उसको ग्रीट करती थी. ग्रीट क्या करती थी? गुड मॉर्निंग. व्हेन वी आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, जब हम भी उठते हैं मॉर्निंग में, तो जैसे हम अपने घर में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सबको ग्रीट करते हैं, सेम लाइक दिस अमृता ऑल्सो ग्रीट हर फ्रेंड्स. और उसके फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज. वो ट्रीज को बहुत ग्रेट लव करती थी. ट्रीज ही उसके बेस्ट फ्रेंड थे. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. एवरी डे वो एक एक स्पेशल ट्री को चूज करती थी, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ बातें करती थी. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. वो क्या करती थी? शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक. जैसे हग करते हैं, जैसे हम अपनी मम्मी पापा को हग करते हैं, सेम लाइक दिस अमृता जो है वो ट्री के ट्रंक को हग करती थी एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. उसके साथ विस्पर करती थी, उसके साथ बातें करती थी कि फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ब्यूटिफुल हो. यू केयर फॉर अस. आप सब हमारी बहुत केयर करते हो. थैंक यू ट्री. और ये जो ट्रीज़ है वो हम उसकी केयर करते थे, इसलिए वो डेली ट्रीज़ को थैंक यू बोलती थी. आई लव यू वेरी मच. अमृता जो है वो ट्रीज़ को बहुत लव करती थी. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी. स्ट्रेंथ मतलब ताकत. वो ट्रीज के साथ बातें करती थी, उसको बोलती थी कि आप में जो ताकत है वो मुझे दो. लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. जैसे अमृता का कोई स्पेशल ट्री हुआ करता था, सेम लाइक दिस उसके जैसे ही गांव में खेजड़ी विलेज में जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उसका भी स्पेशल ट्री हुआ करता था. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ ट्री. शेड मतलब ट्रीज की जो छाँव होती है वो. तो वो लोग क्या करते थे? ट्रीज के शेड में खेलते थे डेली. अमृता उसके फ्रेंड्स के साथ अपने अपने स्पेशल ट्रीज के शेड में खेलते थे. ट्रीज इन डेंजर. वट हैपन वन डे. एक दिन ट्रीज जो है वो डेंजर में आ गए, मुश्किल में आ गए. तो क्या हुआ? लेट्स सी. टाइम वेंट बाय. जैसे जैसे टाइम जाता गया, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. अमृता अभी बड़ी होने लगी. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. डेली जैसे वो मॉर्निंग में उठ के ट्रीज को ग्रीटिंग करने जाती थी, गुड मॉर्निंग कहने जाती थी, सेम लाइक दिस वन डे ऑल्सो शी वेंट टू ग्रीट द ट्रीज. वो ट्रीज को ग्रीटिंग्स करने के लिए, गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई. शी सो दैट
देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि कोई स्ट्रेंजर मतलब अनपहचानी व्यक्ति, जिसको हम पहचान नहीं सकते, जो हमारे विलेज की नहीं है, वैसे कोई बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को उसने विलेज में देखा। दे हैड एक्सिस विथ देम। उन लोगों के हाथ में एक्स थी। एक्स मतलब यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दिस मैन विथ एन एक्स। ये मैन के हाथ में जैसी एक्स है, जो है वो इंस्ट्रूमेंट है ट्रीज काटने का इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं एक्सिस। वी कैन फाइंड एक्सिस मोस्ट ऑफ इन विलेजेस। हमारे गांव में जब हम जाते हैं वहाँ पे एक्सिस हम देख सकते हैं। They said that the king had sent them to cut trees for wood. जब अमृता ने उनको पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो उन लोगों ने रिप्लाई किया कि उसको किंग ने, they said that the king had sent, here there is a mistake, this is the spelling of K-I-N-G, king. King had sent them to cut trees for wood. उन्होंने कहा कि हमें राजा ने वुड चाहिए, राजा महल बना रहे हैं नया, तो उसको वुड चाहिए, इसलिए हमें काटने को भेजा है। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। किंग जो है वो अपना पैलेस मीन्स महल, किंग अपना महल बना रहे हैं, तो उसमें उसको वुड चाहिए, इसलिए हमें ये गांव में ट्रीज को काट के उसका वुड लाने को बोला है। अमृता वॉज शॉक्ड मतलब वो आश्चर्य में आ गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेर अबाउट टू कट। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर अमृता, द मैन इज गोइंग टू कट द ट्री एंड अमृता हग द ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि ये मैन जो है वो ट्री काटने जा रहा है और अमृता उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ लेती है। She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने क्या किया, उसके आर्म्स को ट्रीज के ट्रंक के अराउंड रखा और हग किया। The man shouted. वो जो मैन है जो ट्रीज काटने आए थे, उन लोगों ने चिल्लाया। शाउटेड मीन्स उसने चिल्लाया, एंड थ्रेटेंड हर, और उसको खींचा वहाँ से। जो ट्रीज पकड़ के अमृता खड़ी थी तो वहाँ से उसको खींचा। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। बट अमृता ने वो ट्री को छोड़ा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो मैन है सब वो ट्रीज काटने आए हैं, अमृता कैसे टाइटली उसको पकड़ के खड़ी है, उसने वो ट्रीज को छोड़ा नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। किंग्स के मैन जो थे उसको ऑर्डर दिया गया था बाय किंग। राजा ने उसको ऑर्डर किया था तो उसको वो ऑर्डर को फॉलो करना ही था। दे हैड टू कट द ट्रीज, उसको वो ट्रीज काटना ही था, बिकॉज दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ किंग, क्योंकि वो राजा का ऑर्डर था और वो राजा के ऑर्डर को वो मना नहीं कर सकते थे। ऑन सीइंग दिस, ये देख के अमृता's daughters and 100 of villages old and young hugged the trees to protect them. ये देख के जैसे अमृता जो थी वो ट्रीज के अराउंड अपने आर्म्स लगा के हग करके खड़ी थी, वैसे उसको देख के अमृता की जो डॉटर्स थी वो और दूसरे 100 ऑफ विलेजर्स और दूसरे बहुत सारे विलेजर्स जो विलेज में रहने वाले वो ओल्ड थे और यंग भी थे, वो सब हग्ड द ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम। ट्रीज को हग करके खड़े रह गए ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. वो जो पीपल जो स्ट्रेंजर्स थे उन लोगों ने फिर क्या किया, उन लोगों को राजा का हुक्म मानना था, इसलिए ये जो पीपल थे विलेज के वो ट्रीज को हग करके खड़े रह गए, उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो ये स्ट्रेंजर्स ने उन लोगों को
मार दिया। तो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स, अमृता, उसकी डॉटर्स एंड दूसरे बहुत सारे लोग जो थे वो ये ट्रीज़ को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इतना ग्रेट लव करते थे ये खेजड़ी के पीपल्स। When the king heard of this, राजा ने जब ये सुना कि खेजड़ी नाम के विलेज में लोगों ने आपका ऑर्डर लेके जो स्ट्रेंजर्स गए थे ट्रीज काटने के लिए, वो स्ट्रेंजर ने वो पीपल ट्रीज नहीं काटने दे रहे थे, इसलिए स्ट्रेंजर ने वो पीपल को मार डाला। ये सब जब किंग ने सुना तो लेट्स सी व्हाट ही डिड। He could not believe that people gave up their lives for trees. उसको मानने में नहीं आया कि लोगों ने ट्रीज के लिए अपनी जान दे दी। फिर राजा ने क्या किया? He visited the village himself. फिर राजा खुद वो विलेज को विजिट करने के लिए, वो देखने के लिए, उसके सैनिकों ने उसको बताया कि उसके पीपल्स ट्रीज नहीं काटने दे रहे थे, तो हमने उसको मार डाला। राजा को वो मानने में नहीं आया, तो राजा खुद वो विलेज की विजिट करने के लिए आए। देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ पे राजा ने क्या देखा? तो उसने देखा कि यहाँ के लोग कितना रिस्पेक्ट दे रहे ट्रीज को एंड एनिमल्स को। वो सब राजा ने यहाँ स्वयं आके देखा। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। ये विलेज है, विलेज खेजड़ी, वो कैसे प्रोटेक्ट किया गया? द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। ये विलेजर्स की जो फीलिंग्स थी ट्रीज के लिए, तो उसने अफेक्ट किया किंग के ऊपर, मतलब किंग को उसकी असर हुई, मतलब किंग का जो नेचर है वो पूरा चेंज हो गया। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देम ऑन नो ट्रीज वुड बी कट एंड नो एनिमल्स हार्म्ड इन दैट एरिया। उसके बाद ये सब देख के राजा का दिल भर आया, उसमें कुछ फीलिंग्स हुई, और उसकी ये फीलिंग्स जो है उसने राजा का माइंड चेंज कर दिया। और उसके बाद राजा ने ऑर्डर किया कि अभी आज के बाद ये गांव में कोई ट्रीज़ को काटेगा नहीं और कोई भी एनिमल्स को कोई नुकसानी नहीं पहुंचाएगा। इवन टुडे, आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, आज भी 300 साल के बाद, ये बात 300 साल पहले की है और आज भी ये 300 ईयर्स के बाद भी द पीपल ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड बिश्नोइस। ये एरिया के लोग, उसको बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। सी हियर इज द सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द पीपल ऑफ खेजड़ी नॉन एज। खेजड़ी के पीपल जो है वो कैसे जाने जाते हैं? द पीपल ऑफ खेजड़ी नॉन एज बिश्नोई कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या हुआ कि ये पीपल्स, ये गांव के जो पीपल्स हैं वो बिश्नोई के नाम से जाने जाते हैं और आज भी 300 ईयर्स के बाद भी वो लोग कंटिन्यू प्लांट एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम freely without fear. Dear students, you know that Rajasthan is a desert area. Although here in the middle of the desert के middle part में the area is green, पूरा area green है. Even though it is a desert, the area is green and animals roam freely. Roam मतलब भटक सकते हैं, घूम सकते हैं freely without fear. Fearlessly they can roam here. Dear students, you can see this is the picture of Khejdi.
खेजड़ी ट्री. The खेजड़ी tree is found mainly in desert area. खेजड़ी ट्री हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं. If we want to see the खेजड़ी tree, we have to go to the desert area. खेजड़ी ट्री मोस्ट ऑफ डेजर्ट एरिया में पाया जाता है. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, क्योंकि उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डेजर्ट में वाटर की कमी होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ खेजड़ी ट्रीज आर ग्रोन इन द डेजर्ट एरिया. इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. बार्क मीन्स उसके ट्रंक पे जो उसकी छाल होती है, दैट इज़ यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. दवाई बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, बीन्स. यू कैन सी हियर, these are the fruits of khejuri. People lives in desert area use this khejuri fruit to eat. Dear students, here in this picture we studied about plant, importance of plant. प्लांट्स आर द बैकबोन्स ऑफ ऑल लाइफ. हम सबकी लाइफ का बैकबोन है. जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन नहीं होता है तो वी कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट और सिट प्रॉपरली. सेम लाइक दिस प्लांट्स आर ऑल्सो बैकबोन्स ऑफ ऑल आवर लाइफ. हमारी लाइफ का बैकबोन है. विदाउट प्लांट्स, एयर, फूड, वाटर, सम मेडिसिन्स एंड ऑफ कोर्स our natural and organic beauty products simply wouldn't exist. प्लांट के बिना एयर नहीं होती है. We cannot get food, water and some medicines we cannot get without plants. If there is no plant, then we cannot get food and water also, because trees brings water. If there is no tree, then we can get very less water, and because of less water और water की very less rain की वजह से it is a lack of water. पानी की कमी हो सकती है, shortage हो सकती है. So without plants we cannot live. Okay, dear students, here in this chapter we studied about the importance of plants, how people of Khejdi take care of plants and animals. I hope you all understand this chapter very nicely. Thank you.